Hello students, today we will do the poem Aunt Jennifer's Tigers. Okay, this is your last poem. Okay, the poet expresses the inner feeling of a woman, Aunt Jennifer. The aunt is embroidering a motif comprising of energetic, fearless tiger moving freely around the bright greenery. That there is a woman whom he names as Aunt Jennifer, and she is doing embroidery. And while doing embroidery, what she has embroidered, the tiger, and the tigers are looking so fearless and they are moving around in the background of the greenery. Okay, so the background is of forest, and they are very elegant and majestic and very egoistic, and they are walking around. She is living a life of submissiveness to her husband's command. Now, submissiveness means that she has surrendered herself to her husband's command. Ki whatever her husband commands, only that she used to do. She doesn't follow her own heart. Her acts are dominated by him and she fears him constantly. Okay, so this poem depicts that this woman is under the pressure of her husband, who completely command her, and she is under her control, and she always have a fear of him. This pattern of the free and fearless tigers reflect her inner desire to live free, and through this embroidery she is depicting, or she is showing that she fears a lot, and she wants to be out of all this fearfulness, और ये जो डरती रहती है अपने हस्बैंड से, वो इन सब से फ्रीडम चाहती है. एंड शी वॉन्ट टू लीव ऑल दैट, एंड शी वॉन्ट टू बी लाइक दिस टाइगर who is walking freely in his forest, in his that is his home. सो उसी तरह ये भी फ्री होना चाहती है, आज़ाद होना चाहती है इन टाइगर्स की तरफ. एंड शी इज़ शोइंग हर फीलिंग इन द एम्ब्रॉयडरी, बिकॉज शी माइट बी, जो किसी को बता नहीं सकती, किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकती है, तो अपनी इस आर्ट के थ्रू इसको एक्सप्रेस कर रही हैं. आंट जेनिफर्स फिंगर ट्रेम्बल एज शी एम्ब्रॉयडर्स, कि जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं तो उसकी जो फिंगर्स हैं वो शेक हो रहे हैं, शिवर हो रहे हैं, मीन्स वो काँप रहे हैं. मे बी शी इज़ बीन फियर दैट कि उसके हस्बैंड आ जाएंगे और बोलेंगे तुम क्या कर रही हो. ही माइट नॉट लाइक हिज डूइंग एम्ब्रॉयडरी, तो ही मस्ट बी सेइंग कि वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड ऑल. सो इसीलिए वो डर डर के वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है. She does not enjoy the freedom to do anything as per her wish. This lady have no freedom to do things of her own choice. She has to follow the command of her husband. She is scared doing the embroidery too and fears his wrath. Since the day she got married, she has been fulfilling the demand of her husband. कि जब से उसकी मैरिज हुई है वो वही करती आ रही है वॉट एवर हिज हस्बैंड इज़ कमांडिंग हर टू डू, और जिस बात के लिए वो मना कर देते हैं शी इज़ नॉट डूइंग दैट थिंग. सो जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम हर मैरिज, और अभी तो काफ़ी शी इज़ ग्रोन ओल्ड, बट स्टिल हर लाइफ इज़ लाइक दैट ओनली. The burden of the demanding marriage has exhausted her. The torment will not end until her death. कि ये जो दर्द है, ये जो डर है, ये उसकी डेथ के साथ ही ख़त्म होने वाला, उसके पहले तो इसके दिल से ही डर जाने वाला नहीं है. एंड द बर्डन ऑफ द डिमांडिंग मैरिज हैज़ एग्जॉस्टेड हर, कि वो अब थक गई है, वो परेशान हो गई है अपनी इस मैरिज से, विच डिमांड्स कंप्लीट डिवोशन, और ये कर लो वो कर लो. सो आफ्टर फॉलोइंग एंड सारे कमांड्स अपने हस्बैंड के, वो परेशान हो गई हैं. बट शी is not saying anything to him, or she is not fighting for it. Even after her death, the ring will remain on her hand and she will never be free. Now this shows कि उसको मरने के बाद भी आराम नहीं मिलेगा, because when she will die and she will be in her coffin and she will be buried, तो उसके हाथ में वो रिंग तो रहेगी. वो रिंग कौन सी? इसकी मैरिज रिंग. एज क्रिश्चियन में होता है कि मैरिज की जो रिंग होती है दे यूज़ टू वियर थ्रू आउट देयर लाइफ, तो वो रिंग उसके हाथ में रहेगी. उस रिंग का जो बर्डन है, उस शादी का जो इसके ऊपर बोझ है कि इसको उसको फॉलो करना है सम हाउ,
वो बर्डन उसके ऊपर रहेगा ही रहेगा, उसको मरने के बाद भी उससे छुटकारा नहीं मिलने वाला। ऑन द अदर हैंड द टाइगर दैट शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग विल कंटिन्यू टू मूव अराउंड फ्रीली फॉर एवर। और वो दिखा रही है कि जो टाइगर्स हैं दे विल मूव फ्रीली थ्रू आउट देयर लाइफ, कि मैं नहीं जो कर पाई, जो मैं नहीं लिव कर पाई लाइफ, वो ये लोग करेंगे। सो शी इज़ जस्ट डिपिक्टिंग ऑल दीज थिंग्स। हर डिज़ायर ऑफ फ्रीडम एंड फियरलेसनेस विल लिव ऑन थ्रू हर टाइगर्स, कि जो वो चाहती थी, जिस तरह से वो रहना चाहती थी, वो खुद तो नहीं रह पाई पर ये टाइगर्स उस तरह से लिव करेंगे। Okay, now here is the paragraph wise explanation. Okay, the first stanza is Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of world of green. Okay, prance is given, wait a moment, it might be there. Walk or move around with high springy steps. Okay, so these tigers are moving Aunt Jennifer's tigers, which she has embroidered on the sheet or on the cloth, they are moving. Okay, they are moving on the screen or whatever she has portion she has embroidered, उस portion में वो walk कर रहे हैं। bright, उसके जो colors हैं they are very bright. topaz means yellow, कि tigers are in yellow colors. denizen means कि वो रहते हैं, रहने वाले, of a world of green means they are living in a greenery, in a forest, so the background is green. They do not fear the men beneath the tree. जो tigers and they are walking so majestically and so egoistic that they are not afraid of anyone. Like Aunt Jennifer, she is herself afraid of her husband, but the tigers which she has embroidered, they are fearless. They are not afraid of any human being. They pace in sleek chivalric certainty. Okay, कि वो वहाँ पे जाते जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा वो मैजेस्टिक हैं. Okay, they are proud and fearless and they are elegant and shining and full of grace. Now the second paragraph is Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. कि जो आंट जेनिफर है उसकी जो फिंगर्स हैं वाइल डूइंग द एम्ब्रॉयडरी दे आर फ्लटरिंग. फ्लटरिंग मीन्स कि वो काँप रही है, वो हर हैंड्स आर शेकिंग आउट ऑफ फियर. फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल. और उतना घबरा रही है, इतना शी इज़ फियरफुल दैट द निडल शी कांट पुल द निडल. निडल सो वेटलेस बट शी कांट पुल दैट निडल ऑल्सो, बिकॉज एम्ब्रॉयडरी में होता है ना बार बार निडल को कपड़े के अंदर डाल के बाहर निकालना पड़ता है. तो शी इज़ डूइंग इट विद द शेकिंग हैंड्स. द मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड. अब यहाँ पे वो क्या सिम्बलाइज कर रहे हैं कि उसके हाथ ही इतने हैवी हो गए हैं. वाई दिज हैंड्स आर हैवी? बिकॉज हर फिंगर हैज़ द रिंग, मैरिज रिंग विच हर हस्बैंड गेव. और क्रिश्चियन में होता है ना कि मैरिज में दे यूज़ टू एक्सचेंज अ रिंग. तो रिंग का जो बोझ है इसके ऊपर उस मैरिज का, उस शादी का, वो इतना ज़्यादा है दैट शी इज़ फीलिंग सो हैवी. तो उसके हैंड्स इतने हैवी हैं कि वो ठीक से काम भी नहीं कर पा रही है. She describes the wedding ring which was given by uncle to Aunt Jennifer's on their wedding day. She says that it is a kind of burden for her to wear this ring. कि ये रिंग इसके लिए बहुत एक खुशी की चीज़ हो सकती है, बिकॉज एवरीबडी यूज टू शो देयर वेडिंग रिंग्स एंड दे एडमायर एंड लव दैट थिंग. ओके, बट इसके लिए ये एक बर्डन है टू वियर दिस रिंग. शी हैज़ बीन टॉर्चर्ड बाय हर हस्बैंड सो मच दैट द वेडिंग रिंग विच कुड हैव बीन अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, लेकिन वो उसको अब बर्डन लग रही है. उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया है अपनी मैरिड लाइफ में,
और इसीलिए उसको वो हैवी बैंड कह रही है। कोई लाइट बैंड नहीं, हैवी बैंड, बिकॉज उसके ऊपर बहुत बोझ है, बहुत उसको प्रेशराइज किया गया है। दिस मीन्स दैट द रिंग इज एसोसिएटेड विद सम बैड एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ टॉर्चर शी हैज़ फेस्ड, ओके, बिकॉज हर हस्बैंड इज़ वेरी dominating. Okay. Then the third stanza is, when aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. कि जब आंट जेनिफर है, जब वो डेड हो जाएंगी या उनकी डेथ हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग, उनके हाथों में तब भी ये रिंग होगी। और लेकिन उसके जो टाइगर्स हैं, जो उन्होंने एम्ब्रॉयडर्ड किए हैं, वो नहीं इस बोझ से लगे रहेंगे। दे विल बी कंटिन्यूइंग रोमिंग इन दिस forest forever and ever. I'm reading the explanation. The poet says that one can easily sense Aunt's desire for freedom and fearlessness through her design of tiger. कि जो टाइगर्स की जो डिज़ाइन बना रही है, उससे वो डिपिक्ट हो रहा है सब कुछ कि वो क्या चाहती हैं। वो इस तरह की अपने लिए फ्रीडम चाहती हैं, जैसे इन टाइगर्स को है, वो इस एम्ब्रॉयडरी से बताती हैं। जैसे लोग अपनी फीलिंग्स को सॉन्ग्स के थ्रू, अपने ड्राइंग के थ्रू बताते हैं। द आंट जेनिफर इज टेलिंग दिस विद द हेल्प ऑफ अ एम्ब्रॉयडरी. Further, she says that it is not possible for Aunt to achieve this freedom during her lifetime. कि जीते जी तो उसे ये फ्रीडम मिलने वाला नहीं है, और मरने के बाद भी शी माइट नॉट एबल टू गेट दैट फ्रीडम, वो उसके हो सकता है किस्मत में ही नहीं है. शी विल अटेन इट ओनली आफ्टर डेथ. बट हेयर ऑल्सो द आयरनी ऑफ अ लाइफ इज़ दैट स्टिल शी विल बी, कि तब भी उसके हाथों में ये रिंग होगी, और इस रिंग का जो बोझ उसने लाइफ लॉन्ग सफ़र किया है, दैट burden will there after the death also. The ring was the sole proof of the tortures which she had faced from her husband. On the other hand, there are the tigers designed by Aunt Jennifer that will always depict that the कि वो लोग हमेशा इस फॉरेस्ट में जंप करते रहेंगे और बहुत अच्छे से रहेंगे, एंड bravely proudly they will visit the forest. Okay. हेयर वी हैव डन दिस, कि प्रांस होता है कि वॉक करना बहुत स्टाइल में, ईगोइस्टिक और मैजेस्टिकली. टोपाज येलो कलर डेनिजन मीन्स कि वेयर यू आर रिसाइडिंग और हैबिटेट. स्लीक मीन्स एलिगेंट एंड शिवैलरिक इज बीइंग कर्टियस स्पेशली टू वुमेन एंड एक्ट ऑफ अ जेंटलमैन. ठीक है, कि ब्रेवली और अच्छे से वुमेन के साथ बिहेव करने को शिवैलरिक कहते हैं. ऑडियल्स एक्सट्रीमली सीवियर टेस्ट और एक्सपीरियंस, की उसमें ऑडियल वर्ड दिया था ना कि वो जब मर जाएंगी तब भी उनके जो ये ऑडियल्स हैं, जो उनके ये जो बैड एक्सपीरियंस है, जो टॉर्चर था, दैट विल रिमेन विद दैट, क्योंकि उसके हाथ में वो रिंग रहेगी. ओके. प्रांसिंग अगेंस्ट दैट, फ्लटरिंग मीन्स कांपना. ओके. देन देयर आर question also. I am sending you this PDF. You can go through these question and answer. These are very important. And if you have any problem, just message me. Okay, bye.